کل جموں کشمیر سرکار کا بجٹ آیا اور آج سے اس بجٹ پر بحث شروع ہونے جا رہی ہے۔ تمام لیجسلیٹرز اپنی اپنی رائے جموں کشمیر کے بجٹ کے اوپر رکھیں گے۔ اور کیا ہے جموں کشمیر کے بجٹ میں؟ جموں کشمیر کے بجٹ میں پہلی خاص بات یہ ہے کہ جموں کشمیر کی سرکار نے آفیشیلی کیندر سرکار کے ویژن کی انڈورسمنٹ کری ہے کہ جو کچھ مرکزی سرکار نے جموں کشمیر میں کیا وہ جموں کشمیر کی بہتری کے لیے کیا۔ جو تبدیلیاں جموں کشمیر میں مرکزی سرکار نے لائیں وہ تمام تبدیلیاں جموں کشمیر کی بہتری کے لیے لائی گئی۔ سب سے پہلی انڈورسمنٹ یہ ہے، آپ بجٹ ڈاکومنٹ کو جب پڑھتے ہیں تو بجٹ ڈاکومنٹ میں پردھان منتری، گرہ منتری اور وت منتری یعنی فائنانس منسٹر، پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر تینوں کی تعریف کی گئی ہے۔ جموں کشمیر پولیس کے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے بجٹ کو جموں کشمیر کے بجٹ سے الگ کر کے ہوم منسٹری نے اپنے بجٹ میں انکلوڈ کیا ہے، وہ لگ بھگ 11% کے قریب ہے۔ اس کا بھی شکریہ جموں کشمیر کی سرکار نے ادا کیا۔ اور اس کے بعد سب سے خاص بات یہ کہ عام آدمی کو اس بجٹ سے کیا ملا ہے۔ عام آدمی کو اس بجٹ سے پہلی چیز جو ملی ہے وہ 10 کلو کے قریب راشن ملا ہے، اور اس راشن کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اے وائی کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کو یہ راشن ملے گا۔ ان کی تعداد لگ بھگ جو میرے پاس اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 10 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے بعد اسی کیٹیگری کے لوگوں کو 200 یونٹ فری بجلی کی بات کی گئی ہے، مگر اسے انٹیگریٹ کیا گیا ہے سولر روف ٹاپ، یعنی آپ اپنی چھت کے اوپر جو سولر لگواتے ہیں اس سے جو بجلی بنتی ہے اس کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ تیسری خاص بات اس بجٹ میں یہ ہے کہ کہا گیا تھا کہ 12 سلنڈر فری ملیں گے، اس کا ذکر فی الحال اس بجٹ ڈاکومنٹ میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جب گرانٹس پر بات چیت ہو یا لیجسلیٹرز بات کریں تو شاید اس کی بات بھی ہو۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ کہ سینٹرل گورنمنٹ نے جو کچھ جموں کشمیر میں کیا وہ جموں کشمیر کی بہتری کے لیے ہوا ہے، اس کی انڈورسمنٹ اس بجٹ سپیچ میں خود مکھیہ منتری عمر عبداللہ نے کی ہے۔ اس بجٹ ڈاکومنٹ میں 35A جو کچھ خاص تحفظات جموں کشمیر کو دیتا تھا، اس 35A کو لے کر جموں کشمیر کی سرکار کوئی بل لائے گی یا جموں کشمیر کی سرکار اس کو لے کر کچھ بڑا قدم اٹھانے والی ہے، کوئی بات اس کے اندر نہیں کی گئی ہے۔ اس بجٹ ڈاکومنٹ کے اندر پنچایتی راج اور اربن لوکل باڈی الیکشنز کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے لیے حکومت جو ہے وعدہ بند ہے کہ وہ یہ انتخابات کرائے گی۔ اس کے بعد پچھلے 5 سالوں میں جموں کشمیر کی اکانومی گرو کری ہے، جموں کشمیر کی اکانومی کی گروتھ ہوئی ہے، اس کو بھی جموں کشمیر کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ نیشنل کانفرنس گورنمنٹ نے قبولا ہے۔ نان ٹیکس ریونیو انکریز ہوا ہے لگ بھگ 5,824 کروڑ کے قریب، اور اس کے علاوہ ٹیکس ریونیو 11,650 کروڑ کے قریب انکریز ہوا ہے، اس کو بھی جموں کشمیر کی سرکار نے سراہا ہے۔ اور اس کے بعد جموں کشمیر کی سرکار نے یہ بھی مانا ہے کہ 60% کے قریب جو جموں کشمیر کا خود کا ریونیو ہے وہ تنخواہوں میں اور پینشنز میں جاتا ہے، اس بات کو بھی جموں کشمیر کی سرکار نے قبولا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ پاور پرچیز یعنی جو بجلی ہم خریدتے ہیں وہ جموں کشمیر کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، اس کو بھی جموں کشمیر کی سرکار نے قبولا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہوم منسٹری نے جموں کشمیر پولیس کا جو بجٹ تھا اسے اپنی تحویل میں لے لیا، اس بات کو بھی جموں کشمیر کی سرکار نے سراہا ہے اور کہیں پر نہیں کہا ہے کہ ہم اس جو پروویژننگ ہوئی ہے اس کو پروویژننگ کو ہم واپس کروائیں گے۔ 2.36 کروڑ ٹورسٹ جموں کشمیر آئے ہیں، اس بات کا بھی اقرار جموں کشمیر کی سرکار نے کیا ہے، جبکہ پس پردہ جب آپ جموں کشمیر کی انہی وزراء سے انہی تمام لیڈران سے ملتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیک اور فج فگر ہیں جو جموں کشمیر کی سرکار لیفٹنٹ گورنر کی سرکار دیتی رہی ہے۔ لیکن بجٹ سپیچ میں جو بجٹ سپیچ جموں کشمیر سرکار کی سپیچ ہے جس میں لیفٹنٹ گورنر کے دفتر کا کوئی لینا دینا نہیں، جس میں ہوم منسٹری کا کوئی لینا دینا نہیں، جو خاکہ جموں کشمیر کی سرکار کو خود تیار کرنا تھا، اس خاکے کے حساب سے انہوں نے مانا ہے کہ 2.36 کروڑ کے قریب ٹورسٹ جو ہیں وہ جموں کشمیر آئے ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فری راشن کی بات کی گئی ہے،
कि 10 किलो के करीब करीब राशन जो है वो एएवाई बेनिफिशरीज को मिलेगा। लगभग ये 10 लाख के करीब करीब लोग हैं जिनको ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इनकी भी वीडिंग आउट होनी है। इन एएवाई बेनिफिशरीज में भी बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो एएवाई है नहीं, लेकिन उन्हें एएवाई में इंक्लूड किया गया है। और एएवाई कौन है? एएवाई वो हैं जो गरीब से गरीब तर हैं, जिनके लिए 2 रुपया खर्च करके राशन खरीदना भी मुश्किल है। उन्हें 10 किलो राशन जम्मू कश्मीर की सरकार देने वाली है। ये ऑलरेडी मरकज की एक सरकार स्कीम है, उसी स्कीम को यूं समझ लीजिए यहां एक्सटेंड किया जा रहा है। उसके अलावा पेंशन की बात की गई, 10,07,324 के करीब करीब लोग हैं जिनको पेंशन मिलना है। इस पेंशन में 1250 रुपया फी महीना 60 साल तक, 1500 रुपया 60 से 80 साल तक, 2000 रुपया 80 साल और उससे ऊपर। अब जो 2000 रुपए हैं ये 1000 से 2000 किया गया, इसका फायदा सिर्फ 70,000 लोगों को होगा, लेकिन 9 लाख लोग वो हैं जिन्हें 1250 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का पेंशन मिलेगा। और ये वो पेंशन है जो पेंशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपने बजट से देता है। उसके बाद एक कमाल का फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया, अचरज में डालने वाला, हैरान करने वाला। और इससे यह भी पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को उनके विभागों ने और उनके अफसरों ने यह नहीं बताया कि जम्मू कश्मीर में डोमिनेट करता है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। यहां सरकारी ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, और जो ये सहूलत दी गई है कि औरतों को गवर्नमेंट सरकारी जो बसें होंगी उनमें मुफ्त बिठाया जाएगा, उनको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वो अनाउंसमेंट है जो सिर्फ मजाहिया नहीं बल्कि ये वो अनाउंसमेंट है जो ये दर्शाती है कि हुकूमत ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल नावाकिफ है। जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी डोमिनेंट 90% डोमिनेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, यानी महिलाएं हो पुरुष हो सब जो हैं प्राइवेट बसेस में ट्रेवल करते हैं। आपने ई बसेस अभी लॉन्च की हैं और आपकी एसआरटीसी की बसेस जिन रूट्स पर चलती हैं उन रूट्स पर अगर आप औरतों के लिए सुविधा देंगे तो ये कमाल होगा। यानी डोडा से अगर किसी महिला को जम्मू आना है तो बिना किराए के, अगर इसी तरीके से जम्मू से किसी को दिल्ली जाना है महिला को तो मुफ्त। क्या आप ये करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ यहां तक महदूद होगा कि आप जम्मू शहर में अगर कहीं आगे पीछे दाएं बाएं जाना चाहती हैं और उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सरकारी ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल है, ई बस अगर अवेलेबल है, उसमें आपको किराया देना नहीं है। कब से लागू होगा? इन्होंने 1 अप्रैल से बात की है, मगर ये हैरान करने वाला है कि जब जम्मू कश्मीर के वजीर आला को ये मालूम ही नहीं है कि जनाब जमीन पर मेजॉरिटी 90% प्राइवेट ट्रांसपोर्टर जो है वो काम कर रहा है। आपका जो ट्रांसपोर्टर है वो केवल 10% है, लेकिन आपने अनाउंसमेंट कर दी क्योंकि आपको लगा केजरीवाल की तरह दिल्ली में जिस तरीके से सरकारी ट्रांसपोर्ट डोमिनेंट है शायद जम्मू कश्मीर में भी वही है, जबकि हकीकत उससे बिल्कुल परे है। आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो नाम मात्र है और इस ट्रांसपोर्ट का इस फैसले का कोई फायदा आम आदमी को होने वाला नहीं है। उसके अलावा मैरिज असिस्टेंस को 50,000 से 75,000 किया गया है साल 2025 से, जहां एक अमीर बाप अपनी बेटी की शादी पर कम से कम 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक खर्च कर रहा है, 50 से 60 लाख रुपया खर्च कर रहा है। कमजोर से कमजोर घर वाला 10 लाख रुपया खर्च कर रहा है। ये 50 से 75,000 जो आपने असिस्टेंस किया, इसका फायदा जरूर गांव देहात में लोगों को होगा, लेकिन शहरी इलाकों में आज भी गरीब से गरीब बाप को 4 जगह से कर्जे उठाने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर वो अपनी बेटी की शादी करता है। उसके बाद एक बड़ा फैसला ये हुआ, 200 यूनिट फ्री बिजली। जब मैंने ये बात कही थी तो बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं हुई थी। गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार और ये सब बातें आप लोगों ने उस वक्त करी थी। मैंने बड़े तल्ख अल्फाज में कहा था कि जम्मू कश्मीर की सरकार अगर दूसरा जन्म भी ले ले तो 200 यूनिट फ्री बिजली जम्मू कश्मीर के अवामुल नास को, तमाम लोगों को देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा था 200 यूनिट फ्री बिजली देना जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने खिल्ली उड़ाई, कहा आपको फिक्र क्यों है, ये तो हुकूमत करेगी। और हुकूमत ने किया। हुकूमत ने कहा अंत्योदया, हुकूमत ने कहा वही 10 लाख गरीब लोग, उन्हीं को हम ये 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। यहां पर भी मुख्यमंत्री को बिजली विभाग ने या तो मिसलीड किया है
یا بجلی विभाग ने उनको बताया ही नहीं है कि मीटरिंग की पोजीशन क्या है। 22 लाख के करीब करीब कंज्यूमर, और 22 लाख कंज्यूमर में से सिर्फ 6 से 7 लाख के करीब करीब कंज्यूमर के पास मीटर, और इन 6-7 लाख में से भी बहुत कम तादाद है ऐसी जिनके पास स्मार्ट मीटरिंग है जिसमें आप 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो आप गांव देहात में रहने वाले गरीब आदमी को जो AY में आता है 200 यूनिट फ्री बिजली का क्या पैमाना तय करेंगे, कैसे उसको 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे? शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली कैसे देंगे जब उनके घर में मीटर ही नहीं लगा है? जब तक मीटरिंग नहीं होगी तब तक आप फ्री बिजली कैसे देंगे? ये सवाल आम आदमी को परेशान कर रहा है। और वो आम आदमी जिसने आपको वोट दिया, वो श्रीनगर का आदमी जिसने आपको वोट दिया, वो बारामुल्ला का आदमी जिसने आपको वोट दिया, वो पुंछ और रजौरी का आदमी जिसने आपको वोट दिया, और वो बानिहाल का नौजवान जिसने गाना गाया और डांस किया और कहा जून हो, अब अपने गिरेबान में झांक कर देख रहा होगा और सोचता होगा कि जनाब काश मैं भी AAY होता, मुझे भी 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती। इसको फ्री अच्छा नहीं लगता, मुफ्त आप कोई भी चीज बांटे सबको अच्छी लगती है। आम आदमी ने ये सोचा था कि हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा कि 200 यूनिट सबको फ्री मिलेगा, और अगर 200 यूनिट फ्री मिलेगा ये बहुत हद तक हमारे बिजली के बिल के बोझ को कम करेगा। लेकिन हुकूमत ने साफ किया कि जनाब ये वादा था, लेकिन ये मखसूस लोगों के लिए वादा था, ये वादा जम्मू कश्मीर की अवामुन नास के लिए नहीं था। अब इसमें अंत्योदया में भी मैं आपको बताऊं कि जब आप इस फ्री बिजली की बात करेंगे तो 10 लाख के करीब करीब सोल्स हैं। उसका मतलब ये है कि 10 लाख लोग हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें परिवार के लोग भी हैं, लेकिन परिवार केवल 2.3 लाख के करीब करीब। तो यानी 2 लाख के करीब करीब बिजली के कनेक्शन है जिनको ये फायदा होने जा रहा है 22 लाख में से। यानी 20 लाख बिजली के कनेक्शन वो हैं जिन्हें 200 यूनिट का के इस ऐलान का कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। ये हुकूमत ने कल जो ऐलानात की, उसके बाद कल हुकूमत ने एक और मेहरबानी आम आदमी के ऊपर की। वही आम आदमी जिस आम आदमी को तवक्का थी कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी तो हमारे भले के बारे में सोचेगी, सोच लिया सरकार ने यह किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल का दाम 1 रुपया महंगा होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सरकार ने प्रपोज किया कि जो पेट्रोल पर रिबेट मिलता था उसमें वो 1% कमी करने जा रहे हैं, और जो डीजल पर रिबेट मिलता था उस पर 2% कमी करने जा रहे हैं। तो जब 1% और 2% कमी होगी वो आपके लिए मुसीबत है, क्योंकि वो 1 रुपया रिबेट कम जो हो रही है वो पेट्रोल बेचने वाले के लिए हो रही है, वो आपके लिए नहीं है हो रही है। आपके लिए 1 रुपया पेट्रोल जो है वो महंगा होगा। उसके बाद उसके बाद अगली बात सुनेंगे वो और इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि हवाई सफर जम्मू कश्मीर का सबसे महंगा है, कि यानी अगर आपको इसी दाम पर टिकट खरीदना है तो आप किसी विदेश का सफर करके आ सकते हैं जितने में आपको दिल्ली से जम्मू का टिकट पड़ता है। अब जब आप एविएशन टरबाइन फ्यूल का पर भी 5% की करीब करीब की वृद्धि करेंगे तो जनाब आपका एयर ट्रेवल और महंगा हो जाएगा। मतलब ये समझ से परे है कि आप कल तक खुद रोना रो रहे थे, आपकी जमात रोना रो रही थी, आपकी जमात के लीडरान रोना रो रहे थे कि जनाब एयर ट्रेवल जम्मू कश्मीर का इतना महंगा क्यों, एयर ट्रेवल जम्मू कश्मीर का इतना महंगा क्यों। और अब न जाने किसने आपको ये सलाह दे दी, कहा जनाब एविएशन टरबाइन फ्यूल पर हम 5% की वृद्धि करेंगे, उससे आपका एयर ट्रेवल कॉस्ट बढ़ेगा, उससे आपकी टिकट महंगी होगी, उससे आपकी तमाम चीजें जो एयर ट्रेवल से जुड़ी हुई हैं वो महंगी होंगी। लेकिन हो सकता है आपको लगता हो कि आम आदमी के बस में चूंकि जहाज आ गया है, वो उसमें सफर कर रहा है, तो चलिए आम आदमी के बस से इस जहाज को दूर कर देते हैं, शायद इसलिए आपने ये फैसला लिया है। उसके अलावा अगर मैं जो बजट डॉक्यूमेंट है उस बजट डॉक्यूमेंट में 2 बातें तो बिल्कुल क्लियर, पूरे बजट डॉक्यूमेंट को पढ़कर आपको यह समझ में आता है कि जिन रिफॉर्म्स को कल तक जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के तौर पर पब्लिकली जिन रिफॉर्म्स को गालियां दी, जिन रिफॉर्म्स को क्रिटिसाइज किया, जिन रिफॉर्म्स पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की खिल्ली उड़ाई, जिन रिफॉर्म्स पर मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों का दुश्मन बताया, उन्हीं रिफॉर्म्स को पक्का करने की बात जम्मू कश्मीर की सरकार ने की है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने ईपीडीएस सिस्टम को लेकर की तारीफ की है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने रेवेन्यू को मोबिलाइज करने का जो तरीका इस सरकार ने इख्तियार किया है उस पर तारीफ की है।
जम्मू कश्मीर की सरकार ने बड़ी खामोशी के साथ एक्साइज के ऊपर लबकुशाई तक नहीं की है, लेकिन सिर्फ ये कहा है कि जनाब रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। नहीं कहा है कि एक्साइज से जो रेवेन्यू है वो अब जम्मू कश्मीर का कितना है और आज से 8 साल पहले रेवेन्यू कितना था। कुछ नहीं कहा शराब के उन कारोबारियों के लिए जिनको तवक्का थी कि शायद बजट में उनके बारे में भी बात होगी कि हम एक्साइज पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, आपके लिए भी रास्ता निकालेंगे। उसके बाद इस पॉलिसी में वो जो गन लाइसेंस होल्डर थे, जिनमें चोर थे, उनके खिलाफ तो सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो लोग ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे थे उनके बारे में इस बजट डॉक्यूमेंट में कुछ भी उनके बारे में जिक्र तक नहीं किया गया। उसके बाद अक्सर बजट डॉक्यूमेंट जब आप पेश करते हैं तो आप उस बजट डॉक्यूमेंट में इख्तियार रखते हैं कि आप मरकज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं उन तमाम चीजों के लिए जो आपको लगता है कि ये चीजें इरिटेंट हैं जम्मू कश्मीर और मरकज के बीच में। आपने उसको लेकर कोई बात नहीं की। आपने चुप्पी साधी जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर आपने इतना तक नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक में जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, बल्कि वो जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं। आप तो बाहर और अंदर की बात बार बार करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर जो आपकी आर्मी है वो आर्मी अपने ही मुल्क के लोगों को लेकर बिहारी, बंगाली इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करती है। मुझे हैरत होती है, शर्म नहीं आती सोशल मीडिया के ऊपर बिहारी, बंगाली लिखने वालों को कि आप अपनी हुकूमत से कम ये सवाल तो पूछना चाहिए था कि जनाब अपने विजन डॉक्यूमेंट में वो बातें करते जो बातें सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर लोग आपसे सुनना चाहते हैं। इसी बजट डॉक्यूमेंट को पढ़कर इसी बजट डॉक्यूमेंट में वो मुलाजिम जम्मू कश्मीर के जो कैजुअल हैं, डेली वेजर हैं, SRO 520 में कवर्ड थे, वो इंतजार कर रहे थे कि शायद हमारे हक में कोई बड़ी आवाज आएगी, हमारे हक में कोई शोर सुनाई देगा। उनके हक में भी कोई शोर इस बजट डॉक्यूमेंट में सुनाई नहीं दिया। कहीं हुकूमत ने यह नहीं कहा कि इन तमाम लोगों को रेगुलराइज करने के लिए SRO 520 के जरिए हम ये रास्ता निकालेंगे और वो जो कमिटी जिसको ये काम दिया गया था कि आप रेगुलराइज करना शुरू करें, उस कमिटी को रिवाइव करके रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, वो भी इस बजट डॉक्यूमेंट में। इस बजट डॉक्यूमेंट में जो वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया था कि हम इंश्योर करेंगे कि ये जो फॉर्म बच्चे भरते हैं एक ही बार फीस भरें, उन्हें बार बार फीस भरने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आप बजट डॉक्यूमेंट देखिए, कोई किस्सा ऐसा नहीं है। करोड़ों रुपया पब्लिक सर्विस कमीशन और SSR भी बच्चों से जमा कर रहा है, लेकिन वो करोड़ों रुपया जमा करने के बाद भी उस करोड़ों रुपए को जमा करने के बाद भी वो फैसिलिटी और वो जो तवक्कात बच्चों की SSRB और PSC से वाबस्ता हैं, उस पर SSR भी खरा उतर नहीं पा रही है। इस बजट डॉक्यूमेंट में यह भी नहीं कहा गया कि क्या होगा एज रिलैक्सेशन के बारे में। आप जिक्र तो कर सकते थे, और अगर इस बजट डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर इस बजट डॉक्यूमेंट को इन टोटो देखना हो तो ये इन टोटो सेंट्रल गवर्नमेंट के जम्मू कश्मीर में लाए गए रिफॉर्म्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने मोहर लगाई है। ये इन टोटो बजट डॉक्यूमेंट पर सिर्फ मोहर नहीं लगाई है, बल्कि जितने भी रिफॉर्म्स मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में पिछले 6 साल में लाए हैं, हर एक रिफॉर्म पर मरकजी सरकार की तारीफ की गई है, उन्हें अप्रिशिएट किया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के विजन को अप्रिशिएट किया गया है, हालांकि नाम नहीं लिया है। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो शख्स जो उन तमाम के बिहाफ पर यहां पर इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहा था, आपने उसके हक में भी कसीदे पड़े हैं। तो मतलब साफ तौर पर यह कि एक सियासी जमात जब इलेक्शन मोड में होती है तो बड़े किस्से करती है, बड़ी कहानियां करती है और बड़े वादे और बड़े इरादे करती है, लेकिन वही सियासी जमात जब बरसर इक़्तिदार आती है तो उसी विजन को एंडोर्स करती है, उन्हीं रिफॉर्म्स पर तालियां पीटती है जिन रिफॉर्म्स को लेकर इस हुकूमत को सिर्फ परेशानी ही नहीं थी, बल्कि वादा ये किया गया था जब हम आएंगे तो ये तमाम चीजें पलट देंगे। तो जम्मू कश्मीर के बजट में
عام آدمی کے لیے کوئی بڑی راحت ہو ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ ایک اور کام کیا گیا، شاید وہ کوئی بڑی لابی ہوگی کار ڈیلرز کی، وہ لابی ہوگی طاقتور امیر لوگوں کی، جس لابی نے اس بات پر کنونس کیا مرکزی سرکار کو کہ آپ یوں کریں کہ اگر کوئی باہر سے گاڑی خرید کے لاتا ہے تو اسے ٹوکن ٹیکس 3% زیادہ دینا ہوگا، اسے سیس جو ہے وہ 3% زیادہ دینا ہوگا، لیکن اگر ہم سے کوئی خریدے گا تو اسے ٹوکن ٹیکس 9% ہی دینا ہوگا۔ مطلب آپ اب یہ طے کریں گے کہ کار ڈیلر خوش ہونے چاہیے، کار ڈیلر گاڑی بیچنے والا خوش ہونا چاہیے، نہ کہ یہ وہ ریفارمز لائیں جن ریفارم سے عام غریب کاروباری کو فائدہ ہو۔ وہ بڑی برہمنا انڈسٹریل ایسوسیشن کے لوگ جو آپ کے پاس آ کر تھک گئے، جنہوں نے کہا جناب فرائٹ چارجز کے بارے میں آپ سے بات کی اور کئی ڈیمانڈز رکھی، ان کا کوئی ذکر خیر اس میں نہیں ہوا، لیکن مالدار طاقتور لوگ جو بڑے بڑے شو روم یہاں پر رن کرتے ہیں، ان مالدار طاقتور لوگوں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ جناب گاڑیاں باہر سے جو لوگ خریدیں ان کے لیے مہنگا کام کر دیں، تاکہ مجبور ہو جائے ایک آدمی وہ پٹھان کوٹ میں گاڑی نہ خریدے، وہ پنجاب میں گاڑی نہ خریدے، وہ دلی سے گاڑی نہ خرید کے لائے، وہ گاڑی خریدے تو ہم ہی سے خریدے۔ مطلب اس گلوبل ورلڈ میں، اس گلوبلائزڈ ورلڈ میں آپ نے وہ 35A والا جو تھاٹ تھا، اس 35A والے تھاٹ کو مضبوطی فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں حیران ان کاروباریوں پہ بھی ہوتا ہوں کہ آپ 35A کے ختم ہونے کے بعد، آرٹیکل 370 کے ایمنڈ ہونے کے بعد بھی وہی تمام تحفظات چاہتے ہیں اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے، جو تمام تحفظات آپ کو 370 جب تھا تب آپ کے پاس تھے۔ دوہرا چرتر نہیں ہو سکتا۔ یا تو ہم کو سب کچھ قبول کرنا ہے جو 370 کے ایمنڈ ہونے کے بعد ہمیں ملا ہے، یا ہمیں کچھ بھی قبول نہیں کرنا ہے جو 370 کے ایمنڈ ہونے کے بعد ہم کو ملا ہے۔ یہ دوہرا چرتر نہیں ہو سکتا۔ میرے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے اور باقی چھوٹے کاروباریوں کو بھول کر میں یہ کہوں کہ نہیں جناب میری گاڑی بکنی چاہیے، باہر کو جموں کشمیر کے آدمی کو مجبور کر دیجئے کہ وہ باہر گاڑی نہ خریدے، بلکہ میری دادا گیری ہو، وہ میرے پاس آئے مجھ سے گاڑی خریدے۔ I am unable to understand یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے آخرکار منشا کیا ہے؟ بھائی آپ گاڑی کہیں سے بھی خریدیں، آپ اچھے ڈیلر ہوں گے تو لوگ آپ سے خریدیں گے۔ آپ اگر اچھے ڈیلر نہیں ہیں تو لوگ کیوں مجبور ہیں آپ سے گاڑی خریدنے کے لیے؟ لوگ پٹھان کوٹ میں اگر گاڑی سستی مل رہی وہاں سے خریدیں گے، دلی میں سستی مل رہی وہاں سے خریدیں گے، اور یہاں آئیں گے 9% ٹیکس دیں گے اور اپنی گاڑی کی رجسٹریشن کرائیں گے۔ مطلب یہ کس طرح کا ریفارم ہے؟ اس ریفارم سے جموں کشمیر کی سرکار کی کٹی میں کیا آنے والا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ٹوکن ٹیکس جمع کریں گے اس ٹوکن ٹیکس سے آپ اتنا ریونیو جمع کر لیں گے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو کبھی خسارہ ہی نہیں ہوگا؟ اس لیے اٹ از ایزی ٹو سے، بہت آسان ہے یہ کہنا کہ دیش ہت میں ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب دیش ہت کی باری آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اپنا جو اکانومی کا مسئلہ ہے، آپ کا جو اپنا کاروباری مسئلہ ہے، یہ کہیں ہٹ ہو رہا ہے، تو پھر آپ اسی طریقے سے نئے فارمولے لے کر آتے ہیں جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ عام آدمی مجبور ہو اور وہی کرے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے جموں کشمیر کے بجٹ کا لیکھا جوکھا۔ بجٹ سے جڑے ہوئے باقی اور تمام جو تفصیلات ہیں وہ بھی اسٹریٹ لائن پر آپ کو سننے کو ملیں گے۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ فسکل رسپانسبلٹی اور بجٹری مینجمنٹ ایکٹ جو ہے وہ جموں کشمیر کے مالی حالات کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اور گزارش بھی کروں گا آپ لوگوں سے اپنے جذبات پر قابو رکھا کیجیے۔ سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹو کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب سیاسی جماعتیں برسر اقتدار آتی ہیں انہیں وہی کرنا پڑتا ہے جو حکومت چلانے کے لیے ضروری ہو۔ کوئی بھی سیاسی جماعت جذبات، کوئی بھی سیاسی جماعت نعرے، کوئی بھی سیاسی جماعت ایموشنل اتیاچار، ان تمام چیزوں کی کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی ویلیو نہیں۔ اگر ہوتی تو وہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں ریفلیکٹ ضرور ہو۔